Welcome to the Curious Minds. And welcome everyone. I'm going to start a new series on this channel that is Curious Minds. So this series will be of how to design a PCB, like basics of PCB and everything about PCBs. So सर्किट ऐसे दिखते थे कुछ जब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी पीसीबी जब इन्वेंट नहीं हुई थी. ओके, सो आफ्टर दैट पॉल आइलर इन्वेंटेड द पीसीबी इन 1936. सो इन सर्किट्स में बहुत सारे फ्लॉज थे, लाइक वो शॉर्ट सर्किट होते थे और कंपोनेंट्स मेसी थे और बहुत कुछ चीज़ें थी. सो टू प्रिवेंट ऑल दैट फ्लॉज ऑफ द दिस टाइप ऑफ सर्किट्स, पॉल इन्वेंटेड द पीसीबी. So there are multiple PCBs, like types of PCBs. So first one is a multi-purpose PCB or zero PCB. Like actually we use this PCB in college for the minor projects and major projects. After that एक राइट साइड पे इमेज है जो कि एक बेसिक PCB है जो बिल्ड की है. एंड देयर इज़ अ प्रोफेशनल PCB जो कि नीचे वाली इमेज है, जो कि एक्चुअल डिवाइसेस में यूज़ होती है, लाइक इंडस्ट्रीज़ में इस टाइप की PCBs यूज़ होती है. सो वी हैव टू डिज़ाइन PCBs like this. So in this age I am going to cover like how to design a PCB like this one. Okay, so again there are different types of PCB. So first one is a single layer PCB, and then double layer PCB. According to the layers there are different types of PCBs, and also according to the other parameters there are also different types. So this is a 4-layer PCB stack up. So it's like a sandwich of different layers, and by combining all that the एक PCB बन जाती है उससे. ठीक है. So this one is the flexible PCB which is mostly used in displays and the places where you cannot place the PCB which is rigid or which is not flexible. Then we will see how to design a PCB in Altium Designer, because Altium Designer एक बहुत easy सॉफ्टवेयर नहीं है, but it's easy to understand. ओके, सो अदर सॉफ्टवेयर्स आर देयर, बट मैंने वो भी यूज़ करे हैं, बट वो इतने ईजी नहीं है, और यू कैन से दैट कि उतना परफेक्ट नहीं बन पाते उसमें PCB. सो एंड Altium Designer एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इफ़ you know how to use Altium Designer, so definitely it will be easy for you to get a job, or it will be easy to make a PCB. like Altium Designer industry में भी यूज़ होता है, mostly यही यूज़ होता है. okay, the topics that I'll be covering in this whole series, these are the topics. So basics of PCB, like I will tell you, like that I have already covered in this video. Then I will tell you like what basic knowledge you should have about the PCB or in the electronics to design a PCB. And there will be a one video on Altium Designer UI, like what are the options you get in Altium Designer, how their UI looks, and everything about Altium Designer. Then I will tell you how to create a project and how to add files. Then how to create a schematic along with symbols. So when we design something in industry, or when we design something in a company, we have to design our own symbols and our own footprints. We have to maintain our libraries. So I will also tell you how to design a schematic and how to design symbols. Then how to check errors in schematics, and how to update the schematic into the PCB. So you have to go through the process. Then how to create a footprints. So this is the basic thing that you should know while designing a PCB, how to create a footprint. So I will also make a one separate video on how to create a footprints, because it's very necessary to
understand how to create a footprints. Then the all process of PCB, like how to define a board shape, how to place the components and routing and etc. Then creation of required files like Gerber files. This is the main file that uh, you have to generate. Then there are multiple files like assembly file, paste file, and many more. देन हाउ टू चेक द एक्चुअल पीसीबी, लाइक जब पीसीबी बनकर अपने पास आएगी तो उसका एक इंस्पेक्शन करना होता है कि उसके ट्रेसेस अकॉर्डिंग टू आर डिज़ाइन बराबर है क्या, और बहुत सारी चीज़ें होती है. सो आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू चेक द पीसीबी, like board bring up activity. It is called as a board bring up activity. Okay, so thank this is how Altium Designer looks. सो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ओपन है. सो आई विल टेल यू, लाइक आई विल जस्ट शो यू कि कैसे दिखता है अल्टीमेट डिज़ाइनर. यहाँ पे ये जो स्कीमेटिक दिख रहा है, सो इसी से हम पीसीबी डिज़ाइन करते हैं. और ये अभी पेंडिंग है ये प्रोजेक्ट, ठीक है. तो ऐसी पीसीबी दिखेगी जब आप बनाओगे, एंड आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनाते हैं, ठीक है. एंड इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर, लाइक आपको मज़ा आएगा पीसीबी डिज़ाइन करने इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, अदरवाइज़ नहीं आएगा. तो अभी इसको क्लोज करते हैं और मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे आप स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है. अगर आपकी ये भी विंडो खुली नहीं तो डोंट वरी, ये इस पैनल से आप इस प्रोजेक्ट विंडो को खोल सकते हो. यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट के फाइल्स दिखेंगे और आप यही से सब ऑपरेट करोगे. प्रोजेक्ट्स में फाइल्स ऐड करोगे, प्रोजेक्ट में से फाइल डिलीट करोगे, और जो कुछ भी फाइल्स के बारे में करना है वो यहाँ से इस प्रोजेक्ट्स के विंडो से करोगे, ठीक है. अदर विंडोज़ भी यहाँ से खुलेंगे इस पैनल में से. ओके, तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए गो टू द फाइल, न्यू एंड प्रोजेक्ट. then give a name, you can give whatever name you know. Then I will give yt underscore test underscore 1. ओके, वहाँ से तुम लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, बट मेरा डिफ़ॉल्ट वही है तो मैं वही रखूँगा. आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, सो यहाँ पे दिखाएगा नो डॉक्यूमेंट्स एडेड. सो यू हैव टू ऐड एवरी डॉक्यूमेंट. ओके, सो फर्स्ट ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट पे जाना है और सबसे पहले आपको स्कीमेटिक 1 बाय 1 जाएगा, ठीक है. स्कीमेटिक ऐड करना है, ठीक है. स्कीमेटिक ऐड कर लिया. देन देखो यहाँ पे स्कीमेटिक शीट आ गई है, ठीक है. इसके बाद ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट पे जाना है और पीसीबी. ओके, पीसीबी ऐड हो जाएगी. और देन यू कैन सेव 1 बाय 1. जैसे शीट हो गई है, इसको सेव कर दो Ctrl+S एंड शीट 1. आप इसको कुछ भी दे सकते हो, लाइक नेम आपको जो देना है कि शीट 1. ओके, सेव. पीसीबी को आपको जो देना है वो दे सकते हो आप. Ctrl+S करना है फिर से और इसको दे सकते हो आप जो देना है. जैसे मैं कुछ तो भी दे रहा हूँ, ठीक है. ओके, सॉरी, नो, आई विल गिव main PCB. Okay, then there are another file that you have to add, like you have to add schematic library in it. आपको schematic library के साथ साथ इसको क्लोज कर देना है. ये पैनल से फिर से खुल जाएगी, ठीक है. इसको भी सेव कर लेना है बाद में. एंड देन आपको ऐड करना है यहाँ पे PCB लाइब्रेरी. ओके, ओके, फाइन. सो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए इतनी सारी फाइल्स का होना ज़रूरी है, ठीक है. दिस आर दी बेसिक फाइल. और फाइल्स होती है, बट टू स्टार्ट दी प्रोजेक्ट इतनी सारी फाइल्स ठीक है. ओके, इसको भी आप नाम दे सकते हो कुछ भी. फ़िलहाल मैं जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दे रहा हूँ, ठीक है. तो क्या क्या फाइल्स है मैं एक बार बता देता हूँ. तो ये मेन प्रोजेक्ट फाइल है यहाँ से, ठीक है. इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कि तुम्हारा स्कीमेटिक शीट रहेगा, जिसमें कि तुम सर्किट डिज़ाइन करोगे, लाइक स्कीमेटिक बनाओगे, और उसी को तुम फिर जब एक्सपोर्ट करोगे पीसीबी में तो यहाँ पे वो पीसीबी बनेगा और यहाँ पे वो सारे कंपोनेंट्स आएंगे. और जैसे मैंने दिखाया था पहले, तो यहाँ पे सब कंपोनेंट्स आएंगे. देन यू हैव टू प्लेस देम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, एंड देन देयर विल बी अ राउटिंग पार्ट एंड also the other part. Okay,
सो यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज़ रहेंगी आपकी, पीसीबी लाइब्रेरी और स्कीमेटिक लाइब्रेरी। स्कीमेटिक लाइब्रेरी में आपके स्कीमेटिक सिम्बॉल्स रहेंगे और पीसीबी लाइब्रेरी में आपके फुटप्रिंट्स रहेंगे, जो कि स्कीमेटिक लाइब्रेरी में जो भी सिम्बॉल्स रहेंगे उन हर सिम्बॉल को उसकी फुटप्रिंट जो है जो पीसीबी लाइब्रेरी में रहेगी वो असाइन होगी। सो जब आप कन्वर्ट करते हो स्कीमेटिक से, दैट्स वाई वो फुटप्रिंट वहाँ पे आ जाती है, और जिस नेट्स के साथ, नेट यानी कि जिस कनेक्शन के साथ वो कनेक्टेड है each component, so it will be automatically connected in your PCB sheet. ओके, सो ये कुछ था, और यहाँ से तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, प्रोजेक्ट फाइल्स बना सकते हो। इसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि स्टार्ट कैसे कर। नाउ विल सी कि कहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन मिलते हैं, कहाँ से सेटिंग्स में जा सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल्स में तो सबको पता है कि फाइल्स में यू कैन हैव अ न्यू प्रोजेक्ट, और किसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। देन एडिट में एज सच इतना कुछ है नहीं, बट अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे है, ओके। और फाइंड रिप्लेस के लिए एडिट में है, कट कॉपी कुछ करना है। देन व्यू में से आप डॉक्यूमेंट्स के लिए फिट डॉक्यूमेंट वगैरह कर सकते हो, लाइक अगर आपके स्क्रीन में वो पूरा नहीं दिख रहा है वो सब। एंड देन वी हैव टूल बार इन विव पैनल, ओके। देन स्टेटस बार और ग्रिड्स। ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ से ग्रिड सेट कर सकते हो आप, ठीक है, और यूनिट्स टॉगल कर सकते हो, ओके। देन इन द प्रोजेक्ट here from here also you can add some files to the project, okay. You can remove the project files from here only, okay. Then in the place you have every like power wire, net labels, port, bus, so यहाँ से आप ये सब लेके स्कीमेटिक्स में यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है कुछ स्कीमेटिक्स में के लिए अलग विजिबल रहेगी, कुछ पीसीबी के लिए अलग विजिबल रहेगी, ओके। देन डिज़ाइन में जैसे कि स्कीमेटिक टू पीसीबी अपडेट करना है तो वी हैव दिस ऑप्शन अपडेट पीसीबी डॉक्यूमेंट, ओके। देन वी हैव ऑप्शन ऑफ मेक स्कीमेटिक लाइब्रेरी, मेक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी। तो स्कीमेटिक लाइब्रेरी अगर सेपरेट चाहिए तो मेक स्कीमेटिक लाइब्रेरी पे क्लिक करना होगा, अगर इंटीग्रेटेड चाहिए तो इंटीग्रेटेड से होगा, ओके। देन यहाँ से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और नेटलिस्ट यहाँ पे होती है, ठीक है। बाकी के इतने कुछ यूज़ में नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे टूल्स है, सो टूल्स में यहाँ से जैसे ये एक है, यहाँ से आप कोई स्कीमेटिक सिंबल या फिर फुटप्रिंट यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, मोस्टली डीजी की से या फिर माउज़र से लेना होता है, ठीक है। देन सिमुलेशन के लिए यहाँ पे है। देन बिल ऑफ मटेरियल, एक जो ये इम्पोर्टेंट होता है, ये रिपोर्ट्स में आता है, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल जिसको हम BOM भी कहते हैं। देन यहाँ से विंडो में एज सच कुछ है नहीं इतना, और हेल्प, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल ये था कि Altium में क्या क्या है, ठीक है। यहाँ तो प्रॉपर्टीज़ और ये प्रोजेक्ट्स आपको पता है, और यहाँ से पैनल से हर पैनल ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, जैसे कि आउटपुट पैनल है, प्रोजेक्ट पैनल है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट खुल गया अभी, तो हर एक पैनल यहाँ से निकलेगा। और आपको अगर स्कीमेटिक लाइब्रेरी और पीसीबी लाइब्रेरी चाहिए तो वो भी आपको इधर क्लिक करके फिर पैनल में जाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। Thank you so much for watching this video till the end, and please don't forget to like, share, subscribe, and if you have any doubts please comment down.